بالکل غلط ہے. یہ تو آپ کا ایک عقائد ہے ایسا, بس ایک آپ نے اپنے اندر ایک وہ عقائد بنائے یا جو لوگ کہہ رہے ہیں وہی ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا غصے کا بھی ایسا ہے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ چلو جو غصہ کرتا ہے وہ بڑے نازک طبیعت ہوتی ہے اور بہت اچھے ہوتی ہے یا تھوڑی دیر بعد ان کی, لیکن اپنا صحت تو آپ نے خراب کر دے اور اپنی دوسروں کے لیے اہمیت تو آپ نے کم کر دی ہے. سب سے زیادہ غصہ جو شخص کرتا ہے اس کا سب سے زیادہ اثر اس کی اپنی صحت پہ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. ساری فیملی پہ تو وہ برا اثر ہوتا ہے, لیکن سب سے پہلے اس کی اپنی مینٹلی اور فزیکلی ہیلتھ خراب ہو رہی ہوتی ہے. اچھا خالدہ, بالکل صحیح. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جیلس ہوتے ہیں, جی, یعنی ان میں تو ویسا دیکھا گیا کہ یہ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں نا, ایسے لوگ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں. دنیا میں بہت سی کمپنیز بنتے ہیں جو کہ وہ چیلنج کرنا چاہتا ہے دوسری کمپنی کو, وہ کمپنیاں کامیاب نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ لوگ ہمیشہ وہ یعنی پلاف ہو جائے کسی نہ کسی ٹائم پہ وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کمپنی, جو دیکھا گیا ہے. جو مقصد جو وہ کمپٹیشن کرنا چاہتا ہے, زیادہ جو ہے نا دوسروں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ایک دم گر جاتا ہے, وہ پلاف ہو جاتا, ختم ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھا گیا ہے وہ کمپنیاں جو کہ انہوں نے اپنے پروڈکٹس کو بہتر کرنا ہے, اچھا کرنا ہے, انہوں نے جتنے بھی پروڈکٹس ہے اس سے بہتری کرنا, ان میں بہتری لے آنا. انہوں نے کمپٹیشن تو نہیں, انہوں نے جیلیسی تو نہیں, مقصد انہوں نے جو مارکیٹ میں میٹیریل موجود ہے اسے بہتر انہوں نے بنانا ہے. تو یہ لوگ بھی غصے میں آ جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, یہ جو جیلیسی, جو پروفیشنل جیلیسی بھی ہوتے ہیں. نہیں, اس کو آپ غصہ نہیں کہہ سکتے ہیں, یہ تو احساس کمتری ہے کہ اس شخص کو جو بھی کسی سے جیلس ہو رہا ہے اس کو اپنے پہ یقین نہیں ہے کہ میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں. وہ اپنی جو خوبیاں ہیں ان کو بہتر کر دے, جو اپنی پروڈکٹ ہے اس کو بہتر کر دے. یہ تو آپ کے ساتھ بھی ہو رہے ہوتے ہیں نا کبھی کبھی, کچھ لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہیں کہ آپ کے جو سمدھا ہیلنگ ہے ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی کیوں ہے, اور وہ جو HMF ورلڈ موسٹ سکسیسفل فارمولا کیوں ہے, PM ویل دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج اتنے اچھے کورس بہترین کیوں ہے, لیکن یہ آپ کے پاس اتنے نالج کیوں ہے, آپ نے اتنے کتابیں کیوں لکھے, اتنا ریسرچ کیوں کیے ہیں, ہمارے جو رکیے ہم دکانداری بنائے تو اس سے آپ نے کم آپ فری کروا رہے ہیں اس میں, اور یہ کیوں کر رہے ہیں آپ سارے کچھ. اچھا ہوتا یہ ہے کہ شاید تھوڑے حد تک وہ صحیح ہو کہ مارکیٹ جو ہے وہ ایک ہی ریٹ ہو, کہیں پہ ایک ریٹ ملتا ہے, کہیں پہ دوسرا ریٹ ملتا ہے, لیکن چونکہ اس چیزوں کے لیے الٹرنیٹیو میڈیسن کے لیے پاکستان میں کوئی نظام نہیں ہے تو کیا کریں, کیا میں ریکی کے 12 لاکھ روپے لے لوں؟ یہ سوٹ نہیں کرتے ہیں, اور یہاں پر کون افورڈ کر رہے, کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اور سب سے ہمیں تو اس طرح سے لوگوں کی خدمت کرنی ہے کہ جو لوگ, ہمیں ان لوگوں کو بچانا ہے جو میڈیکل کے بہت سارے اخراجات نہیں افورڈ کر سکتے ہیں, تو ہمیں ان کو ایک ہی سیشن میں اس قابل بنانا ہے کہ وہ پوری زندگی کے لیے اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. پوری زندگی کے لیے ان کو اس قابل بنا دیں کہ وہ بار بار کسی کی طرف نہیں دیکھیں, خود اس قابل ہوں کہ وہ اپنے مسائل, اپنی فیملی والوں کے مسائل, نہ صرف اپنے فیملی والوں کے, اپنے فرینڈز کے, اپنے ریلیٹیوز کے, یہاں تک کہ جو ان کے ملنے جلنے والے لوگ یا ان کو نہیں بھی جانتے ہیں ان کی بھی وہ ہیلپ کر سکیں. خالدہ ہم نے بہت ترقی کی ہے الحمدللہ, بہت ریسرچ کی ہم نے, بہت محنت کی ہے, بچپن سے کرتے آ رہے ہیں ہم, تعلق ہمارے اس دنیا سے ہے, اور اللہ نے ہمارے نالج میں اتنا اضافہ کیا ہے. کبھی کبھی جو لوگ بہت زیادہ جلس ہوتے ہیں تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے لیکن مجھے خوشی بھی ہوتے ہیں کہ چلو ہمارے پاس کچھ نئی چیز, کچھ ایسی چیز ہے جو بالکل اسے ان میں کچھ میں ہمارے ایسی خوبیاں ہیں جو ان میں نہیں ہیں, تو کچھ ایسی کوالٹیز ہے, بہتر کوالٹیز ہمارے اندر ہے جو ان میں نہیں ہے, اس لیے وہ ہم سے جیلس ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے کہ جیلس ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اگلے بندے کے پاس اگر سچائی ہے تو آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اچھا میں آپ کو تو الٹرنیٹیو میڈیسن کی میں بات کروں, میں بات کر رہا تھا یہاں پر جو NLP کا ایک ماہر ہے کامران سلطان صاحب سے, انہوں نے خود بھی بات کرے تھے, وہ اچھا آدمی ہے, وہ
जेलसी तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता, नहीं है उनमें, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वो बहुत ही एक नाइस, बहुत ही अच्छा इंसान है। अच्छा, उनमें ये है कि वो बड़ा पुरसुकून ज़िंदगी गुजारा, मैंने उनमें देखा ठहराव, देखा अच्छाई देखा उनमें, क्योंकि वो झेलस नहीं है किसी, वो अपने आप पे यकीन होना भी नहीं चाहते हैं वो ना, थोड़ा मिलता है लेकिन ज़िंदगी को एंजॉय कर खुशगवार गुजार लेते, अच्छा गुजार। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे जोशीली तरीके से गुस्से में मार्केट में निकले हुए हैं और उन्होंने किसी न किसी पकड़ना है, किसी हाई चैनल किसी भी जगह पे जाके उन्होंने बस कुछ करना। मैंने उनमें देखा कि इतना बेचैनी, इतने बेसुकूनी, दूर से उसके चेहरे से नजर आ रहा होता है कि वो बीमार है, उनको प्रॉब्लम्स है, मेंटली तौर पे बिल्कुल मेंटली तौर पे नहीं, वो जिस्मानी तौर पे भी नहीं सही, उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकता है। बिल्कुल, ये मैं यानी कह सकूंगा आपकी बहुत सी प्रॉब्लम। अच्छा, मार्केट हमारा हाँ ऐसा है कि देखिए यहाँ पर हमारे पास 17 करोड़ आवाम है, सही है जी। 17 करोड़ आवाम में से अगर मैं 2 करोड़ आवाम को पकड़ता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं 2 करोड़ आवाम को मैं पढ़ा सकूंगा ना, तो बाकी सारे उनके लिए रह गए ना। होता है यहाँ पर ये नाजरीन कि इंसान ने अपने आप को हकीर दिखाना होता है, हकारत का शिकार करना होता है। और जब एक इंसान माइंड पे पढ़ाते हैं, माइंड साइंस पे पढ़ाते हैं, ताकत पे पढ़ाते हैं, पावर पे पढ़ाते हैं, और वो शख्स अगर जेलस है और वो कमजोरी दिखाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार है, तो ये तो फिर इस माशरे में किसी से भी गिला नहीं कर सकता है, किसी से भी नहीं कर सकता है गिला। तो बात ये होता है, समझने वाली बात होती है। देखें, अगर मैंने उनको ये होता है कि कोई यानी उनमें जेलसी होता है कि कोई शख्स उनके पास ना जाए, कोई शख्स हमारे पास ना आए, बस मकसद उनका मतलब ये होता है कि कोई ना आए, बस कोई शख्स हमें कोई अपनाए ना। तो देखिए होता ये है कि लेकिन कामयाब तो नहीं होते हैं ऐसे लोग, कामयाब कभी नहीं होते हैं। कामयाब देखिए कुछ चीज़ों में तो कामयाब ज़रूर हो जाता है। देखिए आपकी सेमिनार्स कितने लोगों ने ख़राब किए, तो कामयाब तो कुछ में हुए थे, नहीं उसमें बल्कि उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। खराबी में कामयाबी तो हुए थे, उनमें बुरा करने में तो थोड़े कामयाबी, बिल्कुल नुकसान उनके हुए, नफरतें लोगों के। और वही स्टूडेंट अभी तक हमारे साथ कनेक्ट है, मुंसलिक है, हमारे साथ उनके ताल्लुक है। तो ये भी जैसे गुस्सा आपको मेंटली तौर पे मफलूज कर देता है जब आप गुस्से में होते हैं, इसी तरह ये एहसास कमतरी जो होता है ये भी मेरे ख्याल में मेंटली तौर पे इंसान को मफलूज कर देता है कि उसको सही और गलत का पता नहीं चल रहा होता, बस उसने करना होता है किसी भी तरह से करना। सही। अच्छा, ये होता है, ये ख्याल था कि ये एक यानी ये भी एक बेहतरीन चीज़ है, बदतरीन ये जेलसी जो है, आप एक दीन के हवाले से और दूसरी हर हवाले से ये बहुत बुरी तरीन चीज़ है। और हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए उन लोगों को जो अच्छा कर रहे हैं, जो बेहतर करे, उनके साथ देनी चाहिए। और बिलखुसूस हमारे प्रोफेशन में हमें एक दूसरे के साथ देनी चाहिए। हमें जलसे अगर दिखाएंगे तो हमारे और फिर इतने कमज़ोर से कमज़ोर तरीन लोगों का क्या फ़र्क हो गया। मगर ये अगर ये आदत है तो आदत छोड़ने का मैं तरीका बता रहा हूँ, अभी आप सीखें और इसको छोड़ दें। जी खालिदा, आप बता रहे थे और मुज़ीर असरात गुस्से, मैं गुस्से के बता रही थी, जैसे सोचने समझने की सलाहियत इंसान को देता है, अच्छाई और बुराई का इदराक नहीं रहता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, असाबी खिंचाव आ जाता है, अपनी फैमिली से दूर हो जाता है। एक शख्स अगर घर में बहुत गुस्सा कर रहा है तो डेफिनेटली फैमिली उससे बात नहीं करेगी, उससे वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी जो वो चाहते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हटते जाएंगे। दूसरों के दिलों में नफरत पैदा होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, मुस्बत पावर जो होती है, जो उसकी पॉजिटिव पावर होती है वो माइनस होना शुरू हो जाती हैं। और गुस्से की कैफियत में जब एक पीक पे इंसान जाता है तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। और
जो ब्रेन हेमरेज है वो भी हो सकता है गुस्से की कैफियत में, घर का माहौल डिस्टर्ब रहता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपकी जो स्लाई अनसीन पावर्स हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि आप मेंटली तौर पे अगर गुस्से में हैं तो आपकी अनसीन, फिजिकली तो आपको नुकसान हो ही रहा है, आपकी जो साइकोलॉजिकल पावर्स हैं, जो आपकी अनसीन पावर्स हैं, उनमें भी आपको बहुत नुकसान होता है। तो ये सारे जो गुस्से के नुकसानात हैं, और इनको छोड़ने का वही है कि आप इसके जो फ़ायदे हैं, छोड़ने के, गुस्से को छोड़ने के फ़ायदे वो भी लिखें और इसके साइड इफ़ेक्ट भी लिखें। फ़ायदे ये हैं कि लोगों को दोस्त आसानी से आप बना सकते हैं, अपने काम में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप रिलैक्स हो के, मेंटली तौर पे रिलैक्स हों, फिज़िकली रिलैक्स हो, तो आप अपनी प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपनी आने वाली जो ज़िंदगी है उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए कोई ना कोई आप अपना जो गोल्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। जिस्मानी बीमारियों को आप निजात मिल सकती है, आपको इससे नफ्सियाती मसाइल से आपको निजात मिल सकती है। अच्छा, सबसे जो बुरी तरीन प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम आते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, और कमर के जो प्रॉब्लम्स है ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गुस्सा एक टेंशन है तो उससे कमर के प्रॉब्लम ज़रूर आ जाते हैं। और दूसरे तो क्या ये गुस्सा जो है खालदा, ये सिर्फ हमारे आदत है कि ये कोई परेशानी की वजह, देखे ये परेशानी की वजह से, बीमारी की वजह से भी हो जाती हैं। कहीं किसी को तंगी आ जाता है, कोई ना कोई अंदर उसकी तंगी होती है, तो उस वजह से भी हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूव किया है कि जितना काम आप मुस्बत बात करके और कूल डाउन रह के ले सकते हैं या कर सकते हैं, गुस्से की कैफियत में कभी भी नहीं कर सकते, ना ही अगले बंदे से। आप देखें, अगर एक बच्चा है, आप उसको डांट के कहते हैं कि ये काम करो, वो वक्ती तौर पे तो आपसे शायद डर के वो काम कर देगा, लेकिन उसके अंदर आपके लिए एक नफरत पैदा हो जाती है कि इन्होंने मुझे डांटा और ज़बरदस्ती काम करवाया। एक एज आएगी जब वो इतना बड़ा हो चुका होगा कि अब जो शख्स है ये मुझे कुछ नहीं कह सकते हैं, तो अब मैं अपनी मर्जी करूँगा, तो वो लाजमी नेगेटिव काम करेगा। और सबसे बढ़ के ये कि जब हम गुस्सा करते हैं घर में, ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स होते हैं, तो बच्चे अगर कोई अच्छी बात होती है उनके साथ, तो भी वो डर की वजह से अपने वालिदैन को नहीं बताते हैं। आहिस्ता आहिस्ता होता है ये है कि उनके दरमियान एक ताल्लुक होता है, वो ख़त्म होना, दूर होना शुरू हो जाते हैं बच्चे। तो फिर बाद में अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो भी वो अपने वालिदैन को नहीं बता सकते हैं। हमारे पास जो आती हैं लेडीज़ आती हैं, उनके बच्चों के साथ इसी तरह के मसाइल होते हैं, उनकी अपने बच्चों के साथ काउंसलिंग नहीं होती है। मतलब वो अपने बच्चों को कभी भी पॉजिटिव नहीं कहते हैं, हमेशा नेगेटिव, हमेशा डांट के बात करनी है, हमेशा उनको बुरा कहना है, हमेशा उनको नीचा दिखाना है। तो वो फिर एक वक्त आता है कि वो इतना, जब उनकी एज बढ़ती जाती है तो वो इतने नेगेटिव हो चुकी होती हैं कि वो वालिदैन की बात ही नहीं मानते हैं। खालदा, इसके जो ब्रेन हेमरेज भी होती है इससे, और इस गुस्से से, यानी देखिए जिस तरह खालदा ने बताया आपको कि इनके गुस्सा जितना हम अच्छा करें, जितना रिलैक्स हो हम, जितना पुरसुकून हो हम, हमसे काम अच्छे होंगे, कोई भी काम हुए। वाकई ऐसा है कि गुस्से की हालत में इंसान सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर